اس پہ توجہ نہیں دی گئی ہے، اور اگر اس پہ توجہ دی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ مدر آف آل انڈسٹریز ہے، کیونکہ تمام انڈسٹریز کو کیمیکل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر یہاں سے لوکلی ہمارے لوکل انڈسٹریز کیمیکلز دینا شروع کر دیں تو ہمارے جو ایکسپورٹ انڈسٹریز ہے جو کہ ایکسپورٹ کرتی ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دی گئی ہے، اور اگر اس پہ توجہ دی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ مدر آف آل انڈسٹریز ہے، کیونکہ تمام انڈسٹریز کو کیمیکل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر یہاں سے لوکلی ہمارے لوکل انڈسٹریز کیمیکلز دینا شروع کر دیں تو ہمارے جو ایکسپورٹ انڈسٹریز ہے جو کہ ایکسپورٹ کرتی ہے وہ جو ہے کافی فائدے میں رہ جائے گی اس سے۔ ہماری اہم برآمدی مصنوعات الیکٹرانک سامان ہوا کرتی تھیں، لیکن اب نیو انرجی سے چلنے والی گاڑیاں ہیں۔ چونگچنگ نے چین میں نیو انرجی سے چلنے والی گاڑیوں کی صنعت میں برتری حاصل کی ہے۔ ایگریکلچر کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بڑھائیں گے تو 8 سے 10 ارب ڈالر کا تو امپورٹ بل ہی کٹ ہو جائے گا آپ کا۔ ناظرین محترم السلام علیکم، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ کیمیکلز تمام صنعتوں اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے انتہائی اہم ہیں، جبکہ پاکستان میں کیمیکلز زیادہ تر درآمدات پر انحصار کرتے ہیں اور اس طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آئیے تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کیمیکل سیکٹر وہ سیکٹر ہے جس میں جو ہے تقریباً ہر 100 میں سے تقریباً ہر 10 میں سے 4 امپلائیز جو ہیں مطلب ہے 4 امپلائیز کے لیے جنریشن ہوتی ہے۔ اگر 10 امپلائمنٹ نکلتی ہیں تو اس میں سے 4 کی جو ہے وہ کیمیکل سیکٹر سے نکلتی ہے۔ اس کی موجودہ وجہ یہ ہے کہ یہ سیکٹر وسیع سیکٹر ہے، یہ ٹیکسٹائل، ڈائز اور بہت سے دوسرے ایکسپورٹ اورینٹڈ چیزوں پر مشتمل ہے۔ اپنی اہمیت کے باوجود پاکستان میں کیمیکل سیکٹر کا ابھی تک صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا ہے۔ اس وقت کیمیکل انڈسٹری میں خام مال کی کمی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے سیکٹرز کو مسائل کا سامنا ہے، جن میں پاکستان کے ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز ٹیکسٹائل اور لیدر شامل ہیں۔ بڑھ جائے گی، کیونکہ جو کیمیکلز ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں کافی مہنگے داموں ملتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کی جو انڈسٹریز کی پروڈکشنز ہے وہ بھی میٹیریل کا کاسٹ جو ہے اور جو فنیشنگ پروڈکٹس ہے ان کی کاسٹ کی قیمت اسی لحاظ سے بڑھ جاتی ہے، تو اسے لوکل جو پروڈکشن آف دا کیمیکل ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بدقسمتی سے اس سیکٹر کو پہ توجہ نہیں دی گئی ہے، اور پاکستان میں جتنی بھی ہمارے کیمیکل انڈسٹریز ہے جو 3-4 ہی ہے جو کہ یہ کیمیکلز اس وقت پروڈیوس کر رہی ہے، تو ان کی بھی جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے، زیادہ تر وہ امپورٹ پہ رلائی کرتی ہے، تو یہاں پہ جو ہے کیمیکل مینوفیکچرنگ فیسلٹی جو ہے اس پہ توجہ نہیں دی گئی ہے، اور اگر اس پہ توجہ دی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ مدر آف آل انڈسٹریز ہے، کیونکہ تمام انڈسٹریز کو کیمیکل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر یہاں سے لوکلی ہمارے لوکل انڈسٹریز کیمیکلز دینا شروع کر دیں تو ہمارے جو ایکسپورٹ انڈسٹریز ہے جو کہ ایکسپورٹ کرتی ہے وہ جو ہے کافی فائدے میں رہ جائے گی اس سے۔ کیمیکل انڈسٹری بہت زیادہ مہارت کی طلب کرتی ہے، جبکہ پاکستانی گریجویٹس کا اس صنعت سے بہت کم تعامل ہوتا ہے۔ ہنرمند افراد کی کمی کا مسئلہ اس شعبے میں صنعت اور عالمی تعاون کو مضبوط بنا کر حل کیا جا سکتا ہے۔ تو ایکیڈمیا اور جو انڈسٹری کے جو لنکیجز ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور گورنمنٹ کو اس کے لیے انسینٹیوز دینی چاہیے کہ جو پرائیویٹ انڈسٹریز ہے وہ اس میں اپنا رول پلے کرے۔ جیسے اس وقت بہت ساری پرائیویٹ انڈسٹریز چائنا میں یا یو ایس میں یا یورپ میں جو ہے وہ کیمیکل پروڈیوس کر رہی ہے، تو اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹرز جن کے پاس تھوڑا کیپٹل ہے وہ اگر
एकेडेमिया के साथ मिलकर कोलैबोरेशन कर ले तो उससे ये इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। एकेडमी इस पे बेहतर तरीके से सनत के साथ मिलकर काम करती है ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके और लोग उसके मुतालिक मालूमात होती है तो लोग उस पर जो है इंडस्ट्री है उस पर वर्क करते हैं, और जब मालूमात नहीं होती तो आदमी उस पर क्या अपनी वो इंडस्ट्री लगाए। जब मालूम एकेडमिक के ज़रिए लोग आएंगे, आगे आएंगी, नई जनरेशन आएगी तो उस पर जो भी वो उस पर काम करेगी तो इससे मुल्क को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, हमारे जो अपना इंस्टीट्यूट है इचीजे रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इन केमिकल्स के उसमें। तो हमारे इंस्टीट्यूट में वो तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो कि केमिकल प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो सकती है। इसमें जो कमी है वो प्राइवेट सेक्टर्स की है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर करे और वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर ले तो हमारे इदारे से उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और इसमें ग्रेट पोटेंशियल है। वो तमाम चीज़ें मौजूद है जो इस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में और इसको प्रोग्रेसिव बनाने में हेल्प दे सकती है। पिछले साल चीन की केमिकल इंडस्ट्री ने 2022 में सरमायाकारी और बरामदात के लिहाज से जबरदस्त तोसी देखी। आपके ख्याल में चीन से कौन सा तजर्बा या टेक्नोलॉजी सीखी जा सकती है? चीन ने जो सबसे ज़्यादा तवज्जो केमिकल्स में दी थी वो क्रैकिंग इंडस्ट्री की डेवलपमेंट पे दी। यही इंडस्ट्री है जो कि केमिकल को बनाती है, या जैसे हम मसलन साबुन बनाते हैं उसके लिए हमें केमिकल चाहिए। हम जो है कपड़ों में को रंग देते हैं या जो है लेदर को रंग देते हैं, इनके लिए हमें केमिकल चाहिए। इसी तरीके से कपड़ों को प्रोसेसिंग के लिए, कॉटन के लिए, वो चाहे सीमेंट इंडस्ट्री के लिए केमिकल चाहिए। ये जो तमाम केमिकल्स हैं ये आप क्रैकिंग इंडस्ट्री से आप बना सकते हैं और चाइना वसी पैमाने पे बना रही है। क्रैकिंग इंडस्ट्रीज उन्होंने लगाई है और तमाम जो दुनिया है उसमें वो बेच रही है। तो हमें जो है चाइना के साथ जो है क्रैकिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने में ताउन करना, उन मिल के कोलैबोरेशन करनी चाहिए ताकि हम पाकिस्तान में अपनी क्रैकिंग इंडस्ट्री डेवलप कर सके। हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है। इस साल के शुरू में पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान केमिकल एक्सपो 2023 लाहौर में मुनक्कद हुई, जिसमें केमिकल इंडस्ट्री में सरमायाकारी और तजारती इम्कानात को उजागर किया गया। पाकिस्तान केमिकल इंडस्ट्री का रोशन मुस्तकबिल देखना बाकी है। नाजरीन, इस मौजू पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केमिकल लिंकर्स पाकिस्तान बीजिंग ऑफिस के चीफ नुमाइंदे जनाब आमिर कैसर साहब। जी जनाब, तो आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान की केमिकल सेक्टर को सीपैक या चीन के तावन से फ़ायदा उठाया है? सीपैक से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। अभी शुरू केमिकल सेक्टर में अभी शुरू नहीं हुआ। केमिकल सेक्टर में शुरू होगा जब हमारे इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे। जो हमारा जो सीपैक है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इंडस्ट्रियल जोन है। जो मेन हमारे 4 बड़े इंडस्ट्रियल जोन बनने हैं उसमें केमिकल इंडस्ट्री की अलग जगह रखी हुई है। तो उसमें जब ये इंडस्ट्री लगना शुरू होगी, केमिकल इंडस्ट्री लगना शुरू होगी तो उस वक्त पाकिस्तान को ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत ज़्यादा है केमिकल्स का। अच्छा, अब ये जो 4 बड़े इंडस्ट्रियल जोन है पाकिस्तान में जो सीपैक के तहत बनने हैं, इसमें जो मेन बेसिक इंडस्ट्री है उसके जो केमिकल होते हैं वो वहाँ बनेंगे तो फिर बेनिफिट होगा और वहाँ से केमिकल हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तान के कई मकामात पर सैलाब आया था और इमदादी सामान की कमी थी। ये सूरत हाल जाने के बाद चीनी शहर चोंगचिंग ने इमदादी सामान की एक खेप जमा की और ज़मीनी समंदरी इंटर मॉडल ट्रेन के जरिए पाकिस्तान रवाना की। आइए तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखते हैं। न्यू वेस्टर्न लैंड सी कॉरिडोर चीन के मगरबी अंदरूनी इलाकों से गुजरता है। ये शुमाल में सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और जनूब में 21वीं सदी की मेरीटाइम सिल्क रोड के साथ साथ चाइना यूरोप रेलवे एक्सप्रेस से मुंसलिक है। नतीजे के तौर पर यह मगरबी चीन के अंदरूनी इलाकों को जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की एसोसिएशन यानी आसियान और इससे आगे तक पहुंचने की इजाज़त देता है, जो खुद को यूरेशियन आलमी सप्लाई चेन के मरकज़ को जोड़ने वाली एक बड़ी नकलो हमल की शरियान और तावन के पुल के तौर पर काम करता है। ये कॉरिडोर एक नया बैनुल-अक़वामी ज़मीनी समुद्री रास्ता है जो अपने तिजारती रास्तों को बैनुल-अक़वामी बनाने के लिए चीन की कोशिशों को जाहिर करता है।
नई बैनुल-अक़वामी ज़मीनी समुद्री तिजारती राहदारी के साथ सफर करते हुए पाकिस्तान के शानदार ऊनी कालीन और जनूब मशरकी एशिया के ट्रॉपिकल फलों ने चीन की मंडी में अपना रास्ता तलाश कर लिया है। ट्रेनों और बहरी जहाजों के जरिए मोटर ट्रांसपोर्ट की सहूलत की बदौलत दरी असना चीन के आलमी शोहरत याफ्ता पकवान बशमूल चोंगचंग की सीचुआन काली मिर्च और हॉट पॉट सीजनिंग, क्वांगसी के गूंगे के नूडल्स और यहाँ तक के माहौल दोस्त ऑटोमोबाइल्स ने दुनिया के कोने कोने तक पहुँचने के लिए वसी पहाड़ों और समुद्रों को अबूर किया है। हमारी अहम बरामदी मसनूआत इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ करती थीं, लेकिन अब न्यू एनर्जी से चलने वाली गाड़ियां हैं। चोंगचिंग ने चीन में न्यू एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों की सनत में बरतरी हासिल की है, बल्कि यहाँ तक कि आलमी सतह पर भी एक अहम मकाम बनाया है। ये वो ख़ास बात है जिसे चीन के सनती इनकलाब के नए दौर में मनाया जाना चाहिए। चेंडू चोंगचिंग इकोनॉमिक सर्कल में सनतें एक दूसरे की कमी को पूरा करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। चिंगान ऑटोमोबाइल हर साल इंटेलिजेंट और न्यू एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों के कई नए मॉडल मुतारिफ कराती है, जिन्हें चेंडू से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के मैदान में ताउन की ज़रूरत होती है। फ़िलहाल हमारे पास 250 से ज़ायद सप्लायर्स चेंडू चोंगचिंग खत्ते में मौजूद हैं, जिनकी सालाना प्रोक्योरमेंट की मालियत 25 बिलियन RMB से ज़्यादा है। 11 दिसंबर 2022 तक दस्तयाब ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक न्यू वेस्टर्न लैंड सी कॉरिडोर की रेल सी इंटर मॉडल ट्रेनों ने 8,345 ट्रेनें चलाई हैं, जो साल ब साल 45% इजाफे की नुमाइंदगी करती हैं। ये ट्रेनें 17 चीनी सूबों, खुद मुख्तार इलाकों और म्यूनिसिपैलिटियों से होती हुई 60 शहरों से गुजरती हैं और 113 स्टेशनों पर रुकती हैं। मजीद बरा इनके पास तमाम 12 मगरबी सूबों की मुकम्मल कवरेज है, जो दुनिया भर के 113 ममालिक और खित्तों में 338 बंदरगाहों तक पहुंचती हैं। बेल्ट एंड रोड और यांगसी दरिया की इक्तिसादी पट्टी के संगम पर इसके फायदामंद मुकाम के साथ साथ न्यू वेस्टर्न लैंड सी कॉरिडोर के आगाज करने वालों में से एक होने की वजह से चोंगचिंग को अहम किरदार सौंपा गया है। वेस्टर्न लैंड सी न्यू कॉरिडोर के निफाज के मंसूबे का लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मरकज। गुज़श्ता साल सितंबर में पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाके तबाहकुन सैलाब की जद में आए थे और अहम आफात से मुतल्लिका इमदादी सामान की कमी थी। इस सूरत हाल का सुनकर चोंगचिंग ने 1 मिलियन युआन से ज्यादा मालियत का इमदादी सामान जमा किया, जिसमें काटन के खेमे, स्लीपिंग बैग और इमरजेंसी रोशनी के आलात शामिल थे। इसके बाद ये सामान लैंड सी न्यू कॉरिडोर के जरिए रेल सी इंटर मॉडल ट्रेन खिदमात के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचाया गया। इस साल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 10वीं सालगिरह मनाई जा रही है, जिसकी वजह से तकरीबन $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी हुई है और 3,000 से ज्यादा ताउन के मंसूबे बनाए गए हैं। इसके नतीजे में इसने 4,20,000 मुलाजमतों के मौके फराहम किए हैं। PRI के साथ वाले ममालिक में 40 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला है। नई बैनुल-अक़वामी ज़मीनी समुद्री राहदारी इस इक़दाम का एक लाज़मी हिस्सा है, जो कौमों को जोड़ता है और ताउन को फ़रोग़ देता है। चोंगचिंग में तरक्की की कोशिशें मुसलसल आगे बढ़ रही हैं। चीन के तरक्की के मौके और फ़वाइद में शरीक होने के लिए दूसरे ममालिक का खैर मकदम करते हैं। दरियाए यांगसी जिंगकांगतू पंपिंग स्टेशन, जहां अब हम हैं, और दरियाए जियालिंग साउचे पंपिंग स्टेशन मगरबी चोंगचिंग के पूरे 11 अजला और काउंटियों को घरेलू और सनती पानी फराहम करता है। इसके अलावा